comes to KCL, we know that at any junction, the algebraic sum of electric current will be zero. I mean, current entering into the junction will be equal to current leaving the junction. So there are two sign convention. One, current moving towards the junction will be taken as positive, and the current moving away from the junction will be taken as negative. And as far as physical significance of this law is concerned, yes, it obeys law of conservation of charge. And second law, it is Kirchhoff voltage law. So in any closed loop of an electric network, the algebraic sum of EMF and the potential difference will be always equal to zero. So the physical significance of this law is it obeys law of conservation of energy. And we have got four sign convention. So if you trace cell from positive terminal to negative terminal, EMF will be negative. If the cell is traced from negative terminal to positive terminal, EMF will be positive. And for potential difference, if resistor is traced in the direction of current, then potential difference is negative. And if resistor is traced against the direction of current, of course, the potential difference will be positive. So these many things we have discussed in last lecture. So today we'll start with one numerical, or based on KVL as well as KCL. So I will read the question. So already the circuit diagram is given. So if you have got textbook, I am solving question number 10 of unsolved section. That is page number 229. So I will read the question. A battery of EMF 4 volt and internal resistance of 1 ohm is connected in parallel with another battery of EMF 1 volt and internal resistance 1 ohm with their like poles connected together. So when I say like poles connected together, so it means positive is connected to positive. This is positive, this is positive, so it is connected together. This is negative, it is connected together, right? Like poles are connected together. So you got 4 volt, 1 ohm, 1 volt, 1 ohm. So they are connected in parallel. Now further question says, this combination is used to send current through an external resistance of 2 ohm. So there is external resistance, that is 2 ohm. Now the question is, calculate the current through the external resistance. So you have to find current through this resistance. To find the current, obviously we'll be using KVL here, right? First you have to name the loop. I will go with the procedure. So I will name this to be A, B, C, D, E, F. So you're done with naming of loop. Then you have to predict the direction of current. So this is first cell, positive terminal. Obviously it will send the current. I will assume that first cell will send current I1. If current coming out is I1, then current entering on the other side has to be I1. This is second cell. I will assume that current coming out, it's I2. And current entering on the other side has to be I2. Now I1 and I2 will meet here. I will assume that it will come down. Now the net current will be I1 plus I2. And if you want, you can write it as I also. And this current will reach here. Again, it will split. Here it is I2, here it is I1. So you're done with the prediction of current. Next, you have to see how many independent loops we have. Obviously, you have got 3 loops here. 1, 2, 3. This is same as the last example of KVL, right? Very similar to that. But there we had 5 resistors. Here we have only how many resistors we have? 3. 3. Fine. So first we will take any one loop. So there is no compulsion because ultimately you have to find the value of I. So first I will take this big loop. Right? So applying KVL on loop name, you will name it. So I will write it as A,
we'll go this way. F, D, C, A. So I'm going to move in this manner, right? So from A to F, plus to minus, so it should be -4, because EMF, I'm moving from positive to negative, so it is -4. Now current is here, I am moving against current, so it has to be plus. Now current here is I1, and the resistance is 1. Then F to D, nothing is there. D to C, of course, you are moving on this side, and current is against you. So ultimately, you have to write plus. Current is I, and resistance is 2. And you are reached to a point A, so it means it will be equal to 0. But this passage clear? Is the board blur? Yes, sir. Yes, sir. Just a second. Fine. Is it visible? Yes, sir. Okay. So this equation is clear to you? Bacha, is this equation clear to you? How it has come? सर Yes. +4 आएगा ना? Yes. क्या बोल रहे हो बच्चा? +4 आएगा ना सर? +4 क्यों बच्चा? मैंने ऐसा ट्रेस किया तो -2 +2 माइनस, बस तो हाँ। माइनस है। उल्टा ट्रेस नहीं किया मैंने, ऐसा नहीं ट्रेस किया। ऐसा ट्रेस किया तो ये माइनस होता था, ये प्लस होता था। Yes. So anyway, it will not make any difference. ये -4 को उस साइड में लेके जाओ बच्चों, तो you will have, so equation ये होगा, it is I1 प्लस I का बदले में आप लिख सकते हो I1 प्लस I2। इसका हिसाब से ये होगा 2I1 प्लस 2I2, that is equal to -4। उस साइड में जाएगा तो obviously 4 बनेगा। So you can write it as 3I1 plus 2I2 is equal to 4। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। अच्छा क्लियर है ये इक्वेशन? Yes. Yes. अभी आप और एक लूप सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो यू टेल मी कौन सा लूप, अपर वाला लूप या लोअर वाला लूप? जल्दी बोलो कौन सा लूप, कौन सा भी ले सकते हो, कुछ फर्क नहीं गिरेगा। Lower. कौन सा अपर वाला? Yes. Yes. Okay, so I will go in this manner. So I will take A, B, E, F, A। फाइन। सो इधर से इधर जाएगा तो ऑब्वियसली +2 माइनस, तो -1 EMF। देन आप ऐसा जा रहे हो, करंट ऐसा जा रहा है, तो ये भी प्लस है। करंट इधर I2 है, रेजिस्टेंस 1 है, तो इट इज I2 into 1। देन ऊपर जाएंगे तो आप जा रहे हो, करंट भी आपका ही डायरेक्शन में जा रहा है, सो इट शुड बी माइनस ऑफ कोर्स I1 into 1। देन आप जा रहे हो माइनस टू प्लस, तो इट विल बी +4 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये भी समझ में आया? Yes.
तो ये -1 a +4, तो अल्टीमेटली बचेगा, क्या बचेगा बच्चा? 3, राइट? 3. और ये दोनों को वो साइड में लेके गया तो यू विल हैव I1, क्योंकि माइनस विल बिकम प्लस, प्लस विल बिकम माइनस, सो ऑब्वियसली इट इज I1 minus I2 विल बी इक्वल टू, ये से हमें बचता है 3. क्या आएगा? यस दैट इज इक्वेशन नंबर 2. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि एक को एलिमिनेट करना है तो हम लोग सर, इसको I2 इनटू, -1 आएगा क्या बोल रहे बच्चा? सर। I2 -1 आएगा, I1 2 आएगा। हाँ 2 से, मतलब अभी ये इक्वेशन राइट है कि रॉन्ग है? ये तो राइट है ना? राइट है, यस सर, ये राइट। Yes, right है. अभी मेरे को 2I2 चाहिए, तो इधर मैं इंटू 2 कर रहा हूं, तो मेरा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 into 2 will give you, so 2I1 minus 2I2 will be equal to 2 into 3 6. अभी इक्वेशन नंबर 1 को लेके आया, इधर लिखा 3I1 minus plus 2I2 will be equal to 4. तो ऑब्वियसली आपको जस्ट ऐड करना है, सो ऑन एडिंग दिस ये गायब होगा, 2I2 2 plus 2I2, तो ये होगा 5I1 इज इक्वल टू, ये होगा 10. तो I1 का वैल्यू 10/5, इट मींस इट इज 2 एम्पियर. बच्चे समझ में आया? यस यस सर। Yes, अब sir. ये 2 एम्पियर इधर डालो, इधर 2 एम्पियर, सो I1 2 एम्पियर डाला, सो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर, -1 आएगा। in equation number, -1. yes, equation number 2, so I'm going to have 2 minus I2 will be equal to 3. इसका मतलब ऑब्वियसली ये इधर आएगा, तो you'll get I2 is equal to -1 ampere. मतलब समझ Current गया ना? opposite direction में. हाँ, मतलब ये करंट ऐसा नहीं है, करंट ऐसा है. अभी समझ में आया? So if there is minus, it means what you have predicted. You have predicted current from E to B, but it is not from E to B. It is from B to E, right? E2. Okay, but I am not interested in I1 and I2. I am interested in I. But you know that I is equal to I1 plus I2. So I1 is -1. I2 is 2 plus 2. So obviously you're left with 1 ampere. Is it clear? सर टोटल में साइन को भी लेने का ना? लेना है ना, लेना है, जो मिलता है वही वैल्यूज लेना है, Yes, राइट? sir. साइन साइन डायरेक्शन उल्टा लिया है तो साइन उल्टा आएगा, तो उसका एक्चुअल वैल्यू 1 एम्पियर है ना, तो ऐड करते टाइम 3 एम्पियर आना चाहिए। बच्चे अभी इस हम लोग ने जो भी इक्वेशन लिया, ये सोच के लिया ना, -1 एम्पियर के हिसाब से लिया, राइट? यस तो आपको वही लेना पड़ेगा ना जो लिया है, राइट? यस अभी मेरे पे ये बताओ, इधर ये I1 कितना है बच्चा? 2 एम्पियर. हाँ, एम्पियर। चलो आपका कंफर्मेशन के लिए लिखता हूं मैं 2 एम्पियर. अभी बताइए 2 एम्पियर इधर कितना जा रहा है? इधर 1 एम्पियर जा रहा है. तो मेरे को बताओ नीचे 3 एम्पियर कैसा जा सकता है? इट हैज टू बी 1 एम्पियर अलवा, Yes. राइट? क्योंकि 2 में से 1 इधर गया तो बचा कितना है? 1 ही बचता है ना, सो 1 नीचे जाता है. आई होप सो इट कैन नॉट बी 3 एम्पियर. इज इट क्लियर? यस ओके बच्चे कंप्लीट करो इसको, लिख सर लो और थोड़ा. वो सेकंड ब्रांच में ईएमएफ उल्टा कनेक्ट होना चाहिए ना? उल्टा किधर क्यों? नहीं नहीं, इट इज लाइक पोल्स कनेक्टेड टुगेदर बोला है, लाइक पोल्स कनेक्टेड टुगेदर. अनलाइक पोल्स कनेक्टेड बोलेगा तो प्लस का उधर माइनस कनेक्ट कर देते थे. ये लाइक पोल्स मतलब प्लस 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 कनेक्टेड टुगेदर, माइनस 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 कनेक्टेड टुगेदर. सर ने करंट का डायरेक्शन अपोजिट में इसलिए. नहीं 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 बच्चा, तुम समझे नहीं बात को. बच्चे ये जो करंट 1 एम्पियर है ना, ये इसका है, क्योंकि ये डोमिनेंट है ना, तो ये क्या करता है, इसको चुपचाप बिठा के खुद का करंट भेजता है. ये हो रहा है, समझ में आ रहा है यस ना? सर. यस यस. हाँ
अच्छा डन. Yes, sir. यस सर. ओके. Yes. हाँ. अच्छा देखो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 11 सर हो गया आपने- 11. हो गया. यस सर 5/17 एम्पियर आ रहा है. ओके ओके गुड गुड. सो जो नहीं किया है वो लोग घर पे करेंगे. खाली आपको मैं मेथड बता दूंगा कि क्या है क्योंकि सिमिलर मेथड है. इसने भी सॉल्व किया है ऑब्वियसली. Similar. I will read the question. Two cells of EMF 1.5 volt and 2 volt. Say 1.5 volt. आप E1 मान लो. Then E2 2 volt. Having respective internal resistance 1 ohm and 2 ohm. तो R1 का value 1 ohm and R2 का value 2 ohm. Connected in parallel, so has to send current in same direction. So both will send current in the same direction. So ये इधर ये भी इधर. दोनों का करंट का डायरेक्शन सेम है. So same situation through an external resistance of 5 ohm. तो ये 5 ohm है. This is R. Now question is find the current through the external resistance. So you have to find again I का value. So बच्चा don't you think question तो similar है? Yes sir. ये यस सर. तो खाली वैल्यूज उन्होंने चेंज किया है बाकी सब सेम है. तो ये जिसने किया है इट्स वेरी गुड. जिसने नहीं किया है वो लोग घर पे सॉल्व करेंगे. इज इट क्लियर? yes yes यस. Fine. So we will move towards the next topic, that is Wheatstone's bridge network. So this network, 12th sum. क्या बोल रहे हो बच्चा? सर 12th न्यूमेरिकल वोल्ट मीटर. वो नहीं कर सकते ना बच्चा क्योंकि अभी वोल्ट मीटर तक अब लोग आए नहीं ना. राइट. यस सर. हाँ आप कर सकते हैं तो आप ओम्स लॉ लेके कर सकते हो. यू कैन अज्यूम दैट वोल्ट मीटर टू बी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस. तो आपको वोल्टेज चाहिए I इज इक्वल टू करंट फाइंड आउट करो E अपॉन R प्लस R. ये R वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस राइट. अभी उसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए तो V इज इक्वल टू IR. इससे मिल जाएगा आपको आंसर. तो पहले करंट निकालो सर्किट का. देन V इज इक्वल टू I इंटू RV वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस. वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस. तो आपको ये ट्रीट करना है वोल्ट मीटर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है तो आपको आंसर मिल जाएगा. ओके. Anyway, so we will move towards Wheatstone's bridge network. Yeah, Wheatstone bridge. So next is Wheatstone's bridge, or it is Wheatstone's bridge network. Now, but Wheatstone bridge network, basically, it is one device by which we can measure the value of unknown resistance. So a device which is used to measure, आप device बोलो, electric circuit बोलो, right? So you can say anything. So a device which can measure value of unknown resistance is called Wheatstone bridge. Wheatstone's bridge network. Yeah, Wheatstone's bridge. I repeat, a device which can measure value of unknown resistance is called Wheatstone bridge. Right? And इसमें क्या होगा बच्चा? It consists 4 resistance. It consists 4 resistance
I will name it as R1, R2, R3, and R4. So R1, R2, R3, R4. Yeah, you can take it as PQRS also. It's up to you, right? Called. It consists of 4 resistors R1, R2, R3, and R4 called arms of Wheatstone network. So these 4 resistors, they are called arms of Wheatstone network, and they are connected to form a coordinator. They are connected to form a closed loop. So closed loop हम लोग coordinator के shape में रखते हैं. Connected to form a coordinator. So you'll name it as ABCD. So in bracket you'll write a closed loop. Basically, it should be connected to form a closed loop. Connected to form a closed loop. Coordinator ABCD. Called Wheatstone network. It is called Wheatstone network. This coordinator will be called as Wheatstone network. I repeat, एक बार देख लेते हैं. It consists of 4 resistances, that is R1, R2, R3, and R4, called arms of Wheatstone network. They are connected to form a coordinator ABCD. In bracket, you are written a closed loop called Wheatstone network. This closed loop will be called as Wheatstone network. But clear up to this much? Yes. Okay, so we'll consider a closed loop, which is in the form of coordinator. So visualize करो closed loop. Yes. नाम दो उसको A, B, C, D. तो इधर कनेक्ट करेंगे R1, इधर कनेक्ट करेंगे R2. बचा आप PQRS भी ले सकते हैं. It's up to you. So this is R3. मतलब इधर PQRS वैसा. So this is R3 and this is R4. देखो बच्चा, ये जो लूप दिख रहा है आपको, इसको हम लोग Wheatstone नेटवर्क बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चा? Wheatstone नेटवर्क. एंड ये जो 4 रेसिस्टेंस है 1, 2, 3, 4, इसको हम लोग आर्म्स ऑफ Wheatstone नेटवर्क बोलते हैं. आर्म्स ऑफ Wheatstone नेटवर्क, राइट? बच्चा इधर तक समझा? Yes. तो अभी बताओ, ये जो कोऑर्डिनेटर है, डोंट यू थिंक इधर ये जो A एंड C पॉइंट है, A पॉइंट C पॉइंट, डोंट यू थिंक दे आर डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स? Yes. 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 B एंड D जो पॉइंट है, डोंट यू थिंक दे आर आल्सो डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स? Yes. राइट? Yes. Yes. तो इसका मतलब मैं A और C का बीच में कुछ कनेक्ट करता हूं. डोंट यू थिंक ब्रिज फॉर्म होता है? ब्रिज. Yes. तो Yes. आपको नाउ इट इज Wheatstone नेटवर्क. नाउ इफ यू कनेक्ट समथिंग अक्रॉस AC एंड BD, दोनों का अक्रॉस आपने कुछ कनेक्ट किया तो ब्रिज फॉर्म होता है. देन इट इज कॉल्ड Wheatstone ब्रिज नेटवर्क. डिड यू गेट दैट? Yes. तो आपको क्या करना है? AC और BD का बीच में कुछ कनेक्ट करना है तो ब्रिज फॉर्म होता है, राइट? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सुनो. सो फर्स्ट हम लोग B एंड D का बीच में एक सेंसिटिव गैलोनोमीटर कनेक्ट करेंगे. एक गैलोनोमीटर कनेक्ट करेंगे जिसका रेजिस्टेंस G है, राइट? एंड यू शुड अंडरस्टैंड, गैलोनोमीटर एक डिवाइस है which will sense current या which will detect current. मतलब करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है वो बताता है, राइट? सो गैलोनोमीटर डिवाइस which sense या डिटेक्ट or measure
small current. So आप ऐसा बोल सकते हो a device which sense current, detect current या measure small current will be called as galvanometer. Is it clear? Yes. Okay. So across A and C, obviously we'll connect a cell. तो actually ऐसा connect करना चाहिए, मैं बाहर से दिखाऊंगा आपको. So I will connect a cell. So एक cell connect करेंगे इधर with EMF E, and along with cell we will connect one key also. So we'll connect key, and here cell and key obviously they are in series. So this will be the connection. Now we have got galvanometer in between B and D, cell in between A and C. Now this entire setup will be called as Wheatstone bridge network. Is it clear? Yes. Yes. Okay. Yes. Now as I told, it is used to measure unknown resistance. So you can assume that this R1, it's unknown. You don't know the value of R1, and you know the value of R2, R3, R4, and you can adjust also. I repeat, R1 is unknown, R2, R3, R4 are known values. Is it clear? Yes. Okay. So when I plug this in, ultimately current will flow. So when I plug this in, the current will flow. Yes or no? Yes. Yes. Now, how the current will flow? Obviously, current will come out of from positive terminal. So I'll assume that from here, you're going to have current I. If current I is coming out, the entering current has to be I. Yes or no? Yes. Yes. Now this I will reach to point A, and A is a junction, and you know entering current here, it's I. Now it will split. So I'll assume that upper part will have current I1 and the lower part will have current I2. Is it clear? Yes. Yes. Means you can write according to KCL, I will be equal to I1 plus I2, that is using KCL, sorry. I is equal to I1 plus I2. Is it okay? Yes. Yes. Okay. Any doubts? No. Okay. But this I1 will reach point B and I2 will reach point D. Now this is very important point. Now the current flowing through the galvanometer, it purely depends on potential at point B and potential at point D. मतलब current galvanometer में कौन सा direction में जाएगा, that purely depends on potential at B. Potential at B को ऊपर depend रहेगा plus potential at point D का ऊपर depend रहेगा. क्योंकि आपको पता है करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है. आई रिपीट, करंट विल ऑलवेज फॉलो ए पाथ फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. अभी अज्यूम कर लो पोटेंशियल बी का ज्यादा है कंपेयर टू डी, पोटेंशियल बी का ज्यादा है कंपेयर टू डी, तो करंट ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर में कैसे जाएगा, बी टू डी जाएगा. कैसे जाएगा बच्चा? B to D. B to D. Okay. अभी सपोज डी का पोटेंशियल ज्यादा है कंपेयर टू बी, डोंट यू थिंक D करंट to विल B. फ्लो फ्रॉम D to एग्जैक्टली B. D to B. डी टू बी जाएगा. अभी पोटेंशियल बी का और डी का सेम है, दोनों नहीं का जाएगा. पोटेंशियल सेम है तो नहीं नहीं जाएगा. जाएगा, एब्सोल्युटली नहीं जाएगा. राइट. सो हम लोग को वो सिचुएशन लेके आना है. व्हाट यू हैव टू डू नाउ, नाउ वी हैव टू क्रिएट अ सिचुएशन where the galvanometer should give you zero deflection, right? Sorry, first हम लोग ये बात करेंगे, करंट स्प्लिटिंग का बात करेंगे. चलो I1 इधर आ गया, I2 इधर आ गया, तो मैं अज्यूम करूंगा the potential at point B is more than D. तो बताओ क्या होगा, ये I1 स्प्लिट होगा. Yes, D sir. to D जाएगा. एग्जैक्टली जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाता है वो मैं IG ले रहा हूं. अभी बताओ I1 में से IG नीचे गया तो इधर कितना करंट रहेगा, ऑब्वियस है I1 I1 minus minus IG. 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 वेरी गुड. सो दिस I1 minus IG. अब ये IG और I2 मिलके इधर ऊपर आएगा. दिस I2 करंट विल plus बिकम IG. Plus IG. वेरी गुड. सो डोंट थिंक दोनों करंट इधर आके मिलेगा तो माइनस IG प्लस IG कैंसिल होगा. I1 plus बचेगा I2. I1 plus I1 plus I2. I2. I1 plus I2 तो आपको पता है ना कि इट इज I.
कैपिटल है, Yeah. यस। Yes. बच्चा कितना करंट एंटर हो रहा है, कितना I. करंट एंटर, I. कितना करंट I. बाहर आ रहा है, I. आई। I. So मतलब basically you can take this entire system as like a point. Current entering is equal to current leaving. I hope you get it. Yes. 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 Okay. Now what do you have to do, bacha? Say once the connection is done and galvanometer is giving you deflection. Now what do you have to do? You have to adjust R2, R3, R4 in such a manner the galvanometer should give you zero deflection. I repeat, इसको हाथ नहीं लगाना है क्योंकि इसका वैल्यू निकालना है आपको। तो R2, R3, R4 का वैल्यू आपको एडजस्ट करना है। मतलब अज्यूम करो इधर एक रेसिस्टेंस बॉक्स है, आप की निकाल सकते हो, तो की निकाला तो रेसिस्टेंस वेरी होता है, राइट? तो आपको R2, R3, R4 का वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, यू कैन एडजस्ट, राइट? सो यू हैव टू एडजस्ट R2, R3, R4 until the galvanometer will give you zero deflection. अभी galvanometer deflection zero दिया तो हम लोग वो ब्रिज को बैलेंस्ड ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर समझा नहीं यहाँ से। बच्चा सुनो, ये वैल्यू क्या करना है आपको, टच नहीं करना है, जैसा है वैसा ही। अभी R2, R3, R4 का वैल्यू आपको चेंज करना है। फॉर एग्जांपल ये 1 ओम है तो इसको निकाल के 2 ओम करो, 3 ओम करो, 4 ओम करो, लाइक दैट, या 1.1 करो। ये 3 ओम है तो इसको चेंज कर सकते हो। बच्चे ये नॉन वैल्यू मतलब आप चेंज कर सकते हो और आपको वैल्यू पता है। वो आपने रेसिस्टेंस बॉक्स देखा है ना, बहुत सारा कीस होता है। चेंज कैसे होगा? बच्चा अभी मैं दो रेसिस्टेंस बॉक्स में से एक की निकाला और उसका वैल्यू उधर लिखा रहता है, राइट? फॉर एग्जांपल देखो, ये रेसिस्टेंस बॉक्स है, इसमें बहुत सारा कीस होता है, कीस, और की पे लिखा रहता है, वो एक की का नीचे 1 ओम लिखेगा, देन 2 ओम, देन 2 ओम, देन 5 ओम, 10 ओम, वैसे लिखा रहता है। अभी मैंने ये की को निकाला तो उसका रेसिस्टेंस 1 ओम हो गया। दो की निकाला तो 1 ओम और 2 ओम, दे आर इन सीरीज, तो हो गया 3 ओम। और एक की निकाला तो 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 5 ओम। तो चेंज करना मतलब ऐसा है। और आपको इधर आपने कितना रेसिस्टेंस रखा है उधर दिखता है आपको, क्योंकि उधर लिखा रहता है। बच्चे समझा? अच्छा, इज इट ऑडिबल? यस सर। हाँ, मतलब आपको वैल्यू चेंज करना है। चेंज करेगा तो आपको वैल्यू चेंज करके आपको नहीं पता, ऐसा नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में लिखा रहता है कि आपने आप क्या वैल्यू रखा है, राइट? यस यस। तो आपको इन तीनों का वैल्यू चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको ये वैल्यू निकालना नहीं है, आपको ये वैल्यू निकालना है। यू आर इंटरेस्टेड इन वैल्यू ऑफ R1, so you can change, you can adjust the value of R2, R3, R4. Did you get that, everybody? Yes sir. Yes. So suppose the galvanometer is giving zero deflection, then जब galvanometer zero deflection बोलता है, दिखाता है, तो हम लोग ब्रिज को बैलेंस्ड ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? बैलेंस्ड ब्रिज। सो इन बैलेंस्ड कंडीशन, इधर लिख रहा हूं मैं, देखो, इन बैलेंस्ड कंडीशन, ऑब्वियसली ब्रैकेट में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इट इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन्स ब्रिज नेटवर्क। सो बताओ क्या होता है बैलेंस्ड कंडीशन में? ऑब्वियसली IG का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। मतलब तो क्वेश्चन आया, सपोज व्हेन द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड, तो आपको लिखना है व्हेन द galvanometer gives zero deflection. I repeat, if the question is when the bridge is said to be balanced bridge, तो आपको आंसर लिखना है when the galvanometer gives zero deflection, या when current in the galvanometer is zero, right? अभी बताओ बच्चा, सोच के बताना, IG जीरो कब होता है? B and D का पोटेंशियल सेम रहता है। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। सो पोटेंशियल एट पॉइंट B एंड पोटेंशियल एट पॉइंट D सेम है तो जीरो होता है, ये तो आपको पता ही है। एंड जब भी दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है तो जो पॉइंट्स है, राइट, आई मीन B एंड D जो पॉइंट्स है, उसको हम लोग इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। एंड ऑब्वियसली दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो उसमें चार्ज मूव नहीं होता है। चार्ज मूव नहीं हो रहा है तो अल्टीमेटली करंट क्या होगा बच्चा? जीरो होगा, राइट?
right? Yes. Yes. So here B and D are called equipotential points, and जब भी बच्चा Ig 0 होता है, I repeat, जब भी Ig 0 होता है, so we get an equation that is the ratio of these two resistance. ऊपर जो दो resistance है, उसका ratio that is R1 upon R2, it will be equal to the ratio of these two resistance. So that is R3 upon R4. अभी सोच के बताओ, जब आपका Ig 0 है तो आपको ये इक्वेशन मिलता है. अभी बताओ इस पे R3 पता है, R2 पता है, R1 पता है. Don't you think we can find the value of R1? Yes. 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 Right? So this is how we will find the value of unknown resistance. Right? खाली आपका गैल्वेनोमीटर 0 दिया तो इन दोनों का रेसिस्टेंस का रेशियो, इन दोनों का रेसिस्टेंस का रेशियो इक्वल होता है. तो उसमें तीन वैल्यू पता है तो चौथा मिल जाएगा. राइट? अभी बच्चा हम लोग ने यू हैव टेकन दिस इक्वेशन फॉर ग्रांटेड. मतलब हम लोग ने Ig 0 है तो ये मिलता है करके ग्रांटेड में लिया, बट आपको प्रूव करना पड़ेगा अभी. राइट? सो नेक्स्ट हम लोग उसको प्रूव करेंगे कि Ig 0 है तो ये मिलता है. बच्चा इधर तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. कंप्लीट करो इसको, देन उसको प्रूव करेंगे हम लोग.
Done, sir. What about others? Done, sir. Okay, fine. So we'll prove this equation. सबको हो गया राइट बच्चा? Okay. To prove this equation, what we will do now? So obviously two things are done. Labeling हो गया है, prediction of current हो गया है. Now you have to select the loop. So tell me how many loops we have in this circuit? How many loops we have? 5. 5. Okay, 5 loops. अच्छा कितना लूप है? Five loops? 3. बच्चे वैसे देखेंगे ना इसमें 7 loops है. 7. Yes. 7 loops है. देखो इधर 1 loop. This triangle is first loop. This triangle is second loop. This quadrilateral is third loop. Right? Then after that you can move from up, this one upper circuit like this. अच्छा सेल का भी एक सर्किट है ना, तो अल्टीमेटली ये फोर्थ Yes. वाला होगा. नीचे से आया तो फिफ्थ होगा. राइट? एंड ऊपर जाके बीच में से बीच में आया से. लाइक. हाँ वेरी गुड. 6 और ऊपर से नीचे. राइट. नीचे से ऊपर गया नीचे तो से ऊपर 7th हो जाएगा. Yes. तो वैसे देखेंगे तो इसमें 7 लूप्स है. राइट? बट हम लोग को जो इक्वेशन प्रूव करना है उसके लिए 7 लूप्स का जरूरत नहीं है. वी कैन डू इट बाय मींस ऑफ 2 लूप्स ओनली. सो यू विल टेक दिस 2 ट्रायंगल्स, ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 2. तो हम लोग को डिजायर्ड वैल्यू मिल जाएगा. सो फर्स्ट हम लोग लूप ए लेंगे. तो इट इज अप टू यू कैसा ट्रेस करना है, बट आई विल ट्रेस इट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दैट इज ए बी डी ए. सो इन लूप ये अप्लाइंग KVL in loop A B D A. So देखो इधर A to B, आप इधर जा रहे हो, करंट भी उधर ही जा रहा है, तो अल्टीमेटली आप पहले लिखेंगे माइनस करंट I1, रेसिस्टेंस R1. देन B to D, आप नीचे, करंट भी नीचे, तो माइनस करंट IG, रेसिस्टेंस G. देन D to A, आप इधर जा रहे हो, करंट आपका उल्टा आ रहा है, तो मतलब प्लस. तो करंट I2, रेसिस्टेंस R3, तो आप जिधर शुरू किए तो उधर पहुंच गए, तो इट विल बी इक्वल टू 0. राइट? नाउ Yes. अब हम लोग किसका बात कर रहे हैं बच्चा? हम लोग बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क का बात कर रहे हैं. एंड आपको पता है उधर IG 0 होता है. राइट? IG 0 हुआ तो ये पूरा टर्म निकल जाएगा. बराबर है? Yes. एंड Yes. ये प्लस वो साइड में जाएगा तो माइनस होगा. ये माइनस और वो साइड वाला माइनस कैंसिल होके यू विल हैव I1 R1 इज इक्वल टू I2 R3. बराबर है? Yes. 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 दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ नेक्स्ट ये ट्रायंगल लेंगे हम लोग, दूसरा वाला. तो इसको भी वही डायरेक्शन में ट्रेस करेंगे, बी सी डी बी. सो इन लूप बी सी डी बी. सो फिर से हम लोग बी टू सी, आप जिधर जा रहे हैं उधर ही करंट जा रहा है, तो पहला माइनस लिखो. देन करंट इज I1 माइनस IG into R3, sorry R2. देन C to D, आप इधर करंट ऊपर तो माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा. सो इट इज गोइंग टू बी करंट इज I2 प्लस IG into R4. देन आप ऊपर करंट नीचे, तो प्लस IG into G is equal to 0. अच्छा बराबर है इक्वेशन? Yes. Yes. ओके.
तो अभी हम लोग किसका बात कर रहे हैं बच्चा? बैलेंस्ड विस्टन नेटवर्क का बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो भी टर्म आईजी है वो जीरो हो जाएगा। तो आईजी जीरो हुआ तो इक्वेशन ये बनेगा -I1 इंटू R2 और ये बनेगा +I2 इंटू R4 क्योंकि आईजी जीरो है, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ऑब्वियस है ये माइनस प्लस से माइनस इधर आएगा तो माइनस होके माइनस माइनस प्लस होके यू विल हैव I1 R2 is equal to I2 R4, that is equation number 2, right? Yes. Yes. अभी बचा इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करो इक्वेशन नंबर 2 से। तो इफ यू डू दैट, देखो I1 और I1 कैंसिल होके आपको मिलेगा R1 अपॉन R2 Equal to R3 upon R4. एग्जैक्टली R3 अपॉन R4। तो डोंट यू थिंक ए इक्वेशन कब मिलता है? जब IG जीरो है। तो डोंट यू थिंक दिस इज सेम एज दिस इक्वेशन, Yes. राइट? सो ये इसका प्रूफ है। सो आई होप एवरीबॉडी फॉलोड द प्रूफ, राइट? Yes. Yes. अभी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सपोज ब्रिज बैलेंस्ड है। आई रिपीट, ब्रिज बैलेंस्ड है तो हम लोग ने गैलोनोमीटर एंड सेल का पोजीशन को इंटरचेंज किया तो क्या होता है वो देखना। सो आई मीन नोट करके लिखता हूं, इन बैलेंस्ड कंडीशन, in balanced condition, if position of galvanometer and cell is interchanged, then ये हम लोग को देखना है कि then क्या होता है। सो अभी बच्चों देखो, सिचुएशन ऐसा है, ये पॉइंट ए है, ये बी, ये सी और ये डी। तो इधर गैलोनोमीटर है एंड ऑफ कोर्स इधर सेल। ये हमारा ओरिजिनल सिचुएशन, राइट? अभी ये चार रेसिस्टेंस जो है इधर, इसको कुछ नहीं करना है। फॉर एग्जांपल हम लोग को गैलोनोमीटर करंट जीरो दिखा रहा है तो ऑब्वियसली सपोज इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 4 है, तो इसका वैल्यू 3 होगा, इसका वैल्यू 6 होगा। 2/4 1/2 है, 3/6 भी 1/2 है। सो अल्टीमेटली इट इज बैलेंस्ड। बच्चों बराबर है? Yes. 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 तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली? हम लोग ने गैलोनोमीटर जिधर है उधर सेल कनेक्ट करेंगे और जिधर सेल है उधर गैलोनोमीटर कनेक्ट करेंगे और कुछ बाकी कुछ चेंजेस नहीं। तो मतलब ब्रिज जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है एंड ये 6 है। अभी जिधर दिस इज A B C D, सो जिधर सेल था उधर गैलोनोमीटर, सो AC के अक्रॉस सेल था तो उधर गैलोनोमीटर लगाएंगे एंड BC के अक्रॉस गैलोनोमीटर, BD के अक्रॉस गैलोनोमीटर था, उधर सेल कनेक्ट करेंगे लाइक दिस। बच्चे समझ में आया? तो हम लोग ने क्या किया, गैलोनोमीटर और सेल का पोजीशन चेंज कर दिया, राइट? Yes. 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 अभी देखो 4/6 जैसा गैलोनोमीटर इधर है तो 2/4, क्योंकि सेल के अक्रॉस आप रेशियो लेते थे ना, ये सेल के अक्रॉस ऊपर का रेशियो नीचे का रेशियो से देखना है आपको क्या मैच होता है कि नहीं। अभी बताओ 4/6 इज इट इक्वल टू 2/3? Yes. Yes. तो Yes. इसका मतलब अभी भी गैलोनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या रहेगा बच्चा? जीरो रहेगा, राइट? Zero. Yes. सो क्या लिखना है? इन बैलेंस कंडीशन इफ पोजीशन ऑफ गैलोनोमीटर एंड सेल इज इंटरचेंज्ड देन balancing condition is unaltered, then the balance condition, सर स्क्रीन ब्लर है। सर ब्लर दिख रहा है। just a second,
अभी दिख रहा है बच्चा? Yes. Yes, Yes. sir. मतलब balance condition, the balance condition is interchange, then the balance condition is unaltered. Condition is unaltered. Yeah, it will remains the same. So इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आर्म है BD and AC, that is arm BD and AC, उसको हम लोग conjugate arms बोलते हैं. So we call it as conjugate arms. And why it is called conjugate arms? Because in between these arms, we can interchange the position of galvanometer and cell. Still, the balance condition will remains unaltered. Yeah, it will remains the same. बच्चा समझा points? बच्चा, is it clear? Yes. 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 Okay, complete करो.
Finished? But it is done. All finished. No, sir. Okay. Done, sir. Okay. बच्चों सबका हो गया? Done, sir. Fine. Fine. So, see, after this Wheatstone bridge network, obviously it is introduced by a scientist named Wheatstone. He realized, because you got four resistance, right? That is R1, R2, R3, R4. So you have to adjust R2, R3, R4 in such a manner. If it becomes R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. So you have to adjust these three parameters in such a manner it should match with this equation. Then only the galvanometer will give you zero deflection, right? So ultimately it will take a lot of time, this instrument, to adjust these three things in such a manner it will obey this equation. When this is reached, Ig will become zero, right? So it takes a lot of time. So Wheatstone himself, he realized this. He realized that it is taking more time. So what he did, the lower part, I mean this part, he removed. This part he removed and he connected, instead of the lower part, he connected 1 meter long straight conducting wire. So from A to C, he connected 1 meter long uniform conducting wire. Now this instrument, it is the modified version of Wheatstone bridge network, and this instrument it is called Wheatstone's meter bridge. I repeat, it is the modified version of
Wheatstone bridge network, and it will be called as Wheatstone bridge, sorry, meter bridge. Yeah, in other words, it is also called as meter bridge. So the next one will be meter bridge. So you can also call it as Wheatstone meter bridge. Next is meter bridge. So no doubt, actually this meter bridge, it is the basic structure of this, it is same as Wheatstone bridge network, right? बच्चे समझा आपको? क्योंकि टाइम Yes. ज्यादा लग रहा है तो उसने खुद करेक्शन किया, तो खुद करेक्शन किया तो मतलब मॉडिफाई किया, देन लोअर पार्ट को उसने निकाल के 1 मीटर का वायर कनेक्ट किया, तो 1 मीटर वायर कनेक्ट किया, इसके लिए उसको हम लोग मीटर ब्रिज बोलते हैं. So we can call it as meter bridge. Yeah, we can call it as Wheatstone's meter bridge. So anyway, so this instrument, it is also used to measure the unknown resistance. So a device used to measure value of unknown resistance. Will be, of course, it is meter bridge. So first we'll get into construction. First we will get into construction. So when it comes to construction, it consists of a rectangular wooden board. And on this rectangular wooden board, you're going to stretch 1 meter wire. The length of the wire is 1 meter. Now this wire is long, straight, uniform, conducting. When I say uniform, everywhere the area of cross section will be same. Now if I just place it, obviously it will, form kings. Bend हो जाएगा, circle circle घूमेगा, उसको हम लोग kings बोलते हैं. So उसको avoid करने के लिए दोनों end पे हम लोग L shaped metal strips place करेंगे इसको ऊपर, ताकि वो bend नहीं हो जाए. So you're going to have L shaped metal strip like सर एक बार फिर से बताओ ना सर. अच्छा, एक रेक्टेंगुलर मेटल वुडन फ्रेम है, रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम. दिस इज वुडन फ्रेम. ओके, तो इधर 1 मीटर हम लोग ने कॉपर वायर लिया जो लॉन्ग है, स्ट्रेट है, कंडक्टिंग है, देन यूनिफॉर्म है. तो इसको हम लोग ऐसे रखूंगा तो वो बेंड हो जाएगा ना, राइट? ऐसा ऐसा फॉर्म करेगा, देखिए. यस यस. ऐसा फॉर्म नहीं करना है तो दोनों उनका बीच में हम लोग एक मेटल प्लेट रखेंगे दोनों साइड में L शेप, ताकि इनका बीच में रहे. इधर प्रेस करेंगे, इधर भी प्रेस करेंगे तो स्ट्रेट रहेगा. बच्चा अभी समझा? यस सर. ओके, सो इधर एक L शेप्ड मेटल स्ट्रिप है, उधर भी एक L शेप्ड मेटल स्ट्रिप है, ऐसे. So it is stretched in between two L-shaped metal strip. तो उसको नाम भी दे देंगे. चलो इसको हम लोग नाम देंगे C1, इसको नाम देंगे C2, राइट? अभी बताओ C1 और C2 के बीच में कितना गैप है बच्चा? एक ही गैप है ना? 1 मीटर. 1 मीटर. नहीं बच्चा, गैप कितना है? एक गैप है ना, इनका बीच में एक ही गैप है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इनका बीच में एक और एक स्ट्रिप प्लेस करेंगे जो शॉर्ट है और स्ट्रेट है. आई रिपीट, इट इज शॉर्ट एंड स्ट्रेट. सो अल्टीमेटली इसको प्लेस करने से क्या होगा, 2 गैप फॉर्म होगा. देखो, एक आपके हिसाब से ये लेफ्ट गैप होगा, ये राइट गैप होगा, ये लेफ्ट ये राइट, राइट? सो ये स्ट्रिप को मैं C3 लेता हूं. सो C1 C2 C3. इज इट ओके? यस. Yes. Yes. So in between L-shaped metal strip, you will place one more short and straight metal strip, so that you are going to have 2 gaps form. So 2 gap form होगा. अभी फर्स्ट जो गैप है ऑब्वियसली वो लेफ्ट गैप होगा, राइट?
सो ये लेफ्ट गैप है, जो आप चाहिए तो इसको एल डॉट जी लिखो, लेफ्ट गैप, इधर राइट गैप, दैट इज आर डॉट जी। एक लेफ्ट गैप हो गया, एक राइट गैप हो गया। क्लियर अप टू दिस मच बच्चा? Yes, sir. Yes, Okay. sir. अब ये जो लेफ्ट गैप में है ना बच्चा, जो रेसिस्टेंस आपको निकालना है, जिसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, उसको कनेक्ट करेंगे। मतलब बेसिकली अननोन रेसिस्टेंस है, तो मैं इसका वैल्यू x लेता हूं। सो x इज अननोन रेसिस्टेंस, अननोन रेसिस्टेंस। एंड ये जो गैप है, राइट गैप है। तो राइट गैप में हम लोग नॉन रेसिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। तो नॉन मतलब आप रेसिस्टेंस बॉक्स भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली इधर एक रेसिस्टेंस है जो नोन है, और आप चाहे तो वेरी भी कर सकते हैं, उसको की निकल के वेरी कर सकते हैं। सो इसका वैल्यू मैं आर लेता हूं। तो एक्स अननोन है और आर नोन है। इज इट क्लियर? एंड आर को आप बना सकते हो रेसिस्टेंस बॉक्स का यूज करके। तो आर बी इज रेसिस्टेंस बॉक्स। इज इट क्लियर? yes, yes, Sir, resistance box एक बार फिर से बताना, ये समझो। बच्चा रेसिस्टेंस बॉक्स में बहुत सारा कीज होता है। की निकाला तो रेसिस्टेंस आपने जो निकाला है वो आपको पता रहता है कि कितना निकाला है आपने। बराबर है ना? Yes, sir. Yes. Yes. Yeah. मतलब रेसिस्टेंस एक वेरिएबल रेसिस्टर है, एंड आप वेरी करते हैं तो आपको पता रहता है कि आपने कितना वैल्यू रखा है, राइट? अभी रियोस्टेट भी एक रेसिस्टर है, बट उसमें आप वेरी किया तो वैल्यू नहीं पता चलता है कितना है, बट आपको पता है कि वेरी हो रहा है। बट रेसिस्टेंस बॉक्स में आप वेरी करेंगे और आपको पता रहता है कि आपने कितना वैल्यू रखा है, राइट? राइट बच्चा? yes, sir. ओके Yes, sir. चलो, ये जो एंड है इसको मैं पॉइंट ए ले रहा हूं। ये जो एंड है ऑब्वियसली इसको हम लोग पॉइंट सी लेंगे। इधर एक पॉइंट हम लोग सेलेक्ट करेंगे इन दोनों का बीच में, उसको हम लोग बी लेंगे। से पॉइंट ए पॉइंट बी, ए पॉइंट सी। अभी बी पे हम लोग कलेक्ट करेंगे एक गैलोनोमीटर, एंड द गैलोनोमीटर इज कनेक्टेड टू ए स्लाइडिंग की। एंड ये जो स्लाइडिंग की को हम लोग बोलते हैं जॉकी, वी कॉल इट एज जॉकी। सो जे, सो ऑब्वियसली दिस इज जॉकी। जॉकी का दूसरा नाम स्लाइडिंग की है। मतलब जॉकी बच्चे ऐसे ही रहेगा। दिस इज वेरी सिमिलर टू दिस मार्कर। खाली क्या डिफरेंस है मालूम है? ये जो एंड है ना उसमें नाइफ एज रहता है, नाइफ एज। सो आप उसको मूव कर सकते हो, वायर को ऊपर ऐसा स्लाइड कर सकते हैं, राइट? सो इट इज वेरी सिमिलर टू दिस, बट आपको बच्चे ये जॉकी जो है इट इज वेरी सिमिलर टू दिस मार्कर, बट इतना ही फर्क है, मार्कर मेटल रहेगा, मेटल से बनाया हुआ रहेगा, और एंड जो है उसका नाइफ एज रहेगा, ऐसा एज रहेगा, ऐसा एज रहेगा, लाइक दिस। मतलब ऐसा एज होगा, राइट? तो ऑब्वियसली आप इसको ऊपर मतलब ऐसा ऐसा एज, मतलब ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा। तो ये उसका एंड स्ट्रक्चर है, तो आप इसके ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। बच्चा समझा? Sir, नहीं समझा, slide पे। बच्चा देखो ये मेटल है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा। समझते हो ना? ऐसा ये देखो, ये Yes. पॉइंट, तो इसको आप ऊपर स्लाइड कर सकते हो, स्लाइड, Yes, राइट? sir. Yeah. हाँ, इसको हम लोग Yes. नाइफ एज बोलते हैं, एज। समझ में आया? yes, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, देखो ऐसा, ऐसा। तो आप विजुअलाइज करो, इसका नीचे मार्कर का दूसरा पॉइंट है, तो ये एज है। प्रिज्म देखा है ना, प्रिज्म, तो उसको ऊपर का जो एज है आप समझ लो मेटल का प्रिज्म है वो ऊपर। इज इट ओके अप टू दिस मच? yes, sir. Okay, so below the wire, you're going to have a 1 meter scale, so that you can take reading from scale itself. So आप इंस्ट्रूमेंट से ही रीडिंग ले सकते हो। इसके लिए उन्होंने स्केल भी डाल दिया इसमें, जस्ट बिलो द वायर। सो 1 मीटर वायर है तो 1 मीटर का स्केल लगा दिया।
So meter scale. So this is obviously it is going to be meter scale. Okay, fine. So इधर तक clear है. उसका बाद across this ends you're going to connect the cell. एक cell, एक key connect करेंगे. तो EMF plus minus, then key is denoted by K, and आपको इधर करंट एडजस्ट करना है इनकेस आप रियोस्टैट भी यूज कर सकते. दिस इज रियोस्टैट, दैट इज RH, रियोस्टैट. बच्चे इधर देखो, रियोस्टैट में क्या होगा, वैल्यू चेंज होता है बट आपको पता नहीं रहता कि कितना वैल्यू, बट इतना पता है कि वेरी हो रहा है, राइट. सो दिस इज रियोस्टैट. बच्चे इज द सर्किट क्लियर? सर पॉइंट बी एक बार वापस से बताओ. क्या बोल रहे हो बच्चा? वो पॉइंट बी पे वायर को वापस से बताओ. पॉइंट बी किधर है? इधर. बच्चा ठीक है. पॉइंट यही है ना, बी का बता रहे हो ना Yes. यार? यस. हाँ. बच्चा बी पे वायर है, वायर पे गैलोनोमीटर कनेक्ट किया पहला, देन गैलोनोमीटर में जॉकी एक स्लाइडिंग की है. मतलब बेसिकली वो मेटल का मार्कर जैसा ही रहता है, खाली उसका एंड पे नाइफ एज होता है. नाइफ एज क्या रहता है बच्चा? नाइफ एज रहता है. बच्चा समझा? बच्चा इज इट क्लियर? यस सर. यस. ना. तो बी पे एक गैलोनोमीटर, देन इधर जॉकी, देन ए और सी के बीच में एक सेल की रियोस्टेट इन सीरीज रहेगा. सेल की रियोस्टेट इन सीरीज, राइट. अभी वर्किंग पे जाने से पहला करंट कैसा फ्लो होता है वो देखेंगे. सो जब मैं इधर प्लग इन करता हूं, ऑब्वियसली इधर करंट आप आई मान लो, तो इधर आई है तो इधर भी आई होना चाहिए. ये करंट इधर आके स्प्लिट होगा. ऊपर वायर में करंट I2 जाने दो, ऊपर करंट I1 जाने दो. तो I1 इधर से आके वापस इधर जाके ये I1 करंट इधर आके मिलेगा इधर, तो इधर करंट बनेगा I1 प्लस I2. इज इट ओके? यस. हाँ. अभी बच्चा जॉकी किधर भी कनेक्ट नहीं किया तो गैलोनोमीटर में तो करंट नहीं जाएगा, राइट. अभी गैलोनोमीटर क्या होता है बच्चे? देखो ऐसा होता है गैलोनोमीटर का स्केल. सेंटर में 0 होता है, एक साइड में 30 है, दूसरा साइड में भी 30 रहेगा, एंड अभी करंट नहीं जा रहेगा तो ऑब्वियसली वो 0 दिखाएगा. सो इट विल गिव यू 0. ये गैलोनोमीटर का स्केल है, राइट. राइट नाउ इट इज गोइंग टू बी 0 बिकॉज आपने किधर भी उसको कनेक्ट नहीं किया है, या उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो अल्टीमेटली नो करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू इट, राइट. सर्किट सबको समझा बच्चा? यस. ओके, ये कंप्लीट करो.
बच्चा डन? बच्चा इज इट डन? नो सर। बच्चा एक मिनट, हाँ एक मिनट, एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं। बच्चा सुनो, अभी ये जो पॉइंट है, सपोज मैंने 3 पॉइंट लिया ए बी सी, तो बताओ सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका रहेगा? ए का सर। वेरी गुड। वी ए विल बी मोर देन वी बी यस। and ulta. VA is more than VB and VB is more than VC. Is it okay? यस। सर रिपीट। बच्चा पोटेंशियल ए बी सी किसका ज्यादा रहेगा? सबसे ए का, ए का। देन बी का, देन सी का। क्यों? क्योंकि करंट ए टू बी जाता है, देन बी टू सी जाता है, तो करंट हमेशा हायर टू लोअर जाता है, बराबर है? यस। ये यस पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना चाहिए। हाँ राइट। अभी मेरे को बताओ, ये गैलोनोमीटर में बच्चा पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है? बट मैं रेफरेंस के लिए बी का साइड पे जो कनेक्टेड है वो पॉजिटिव ले रहा हूं रेफरेंस के लिए, और ये नेगेटिव ले रहा हूं, राइट? अभी बताओ मेरे को, मैंने सपोज जॉकी को ए पे कनेक्ट किया, विजुअलाइज कर लो बच्चा। मैंने जब जॉकी को ए पे कनेक्ट किया, मतलब ऐसा ऐसा डॉटेड लाइन, ये गैलोनोमीटर, ये साइड प्लस और ये साइड माइनस, एंड मैंने ऐसा कनेक्ट किया ए पे, तो बताओ मेरे को ए और बी में किसका पोटेंशियल ज्यादा है? ए का। ए टू बी करंट जाएगा। ए टू बी जाएगा, मतलब ए टू बी जाए, मतलब गैलोनोमीटर में कैसे जाएगा? माइनस टू प्लस जाएगा, यस बराबर है ना बच्चा? करंट विल फ्लो फ्रॉम माइनस टू प्लस, यस और नो? यस। यस। ओके, तो मैं अज्यूम किया कि गैलोनोमीटर में डिफ्लेक्शन एक साइड में आया, क्योंकि करंट माइनस टू प्लस जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन एक साइड में आया, एंड दिस इज एट पॉइंट ए, मतलब जॉकी को मैंने ए पे टच किया तो डिफ्लेक्शन एक साइड में आया, बराबर है? इधर तक समझा? यस ठीक है। अभी मैंने गैलोनोमीटर जॉकी को इधर से निकाल के बी पे कनेक्ट किया, बी पे। बच्चा अभी ध्यान से बताना मेरे को आंसर। सो इट इज कनेक्टेड टू सी। अब ये माइनस और ये प्लस, ए माइनस, तो बताओ करंट कैसा जाएगा? प्लस टू माइनस। Exactly. It will move from B to C. It means it will move from plus to minus. पहला कैसे जाता था? माइनस टू प्लस, अभी जा रहा है प्लस टू माइनस, मतलब डिफ्लेक्शन दूसरा साइड में जाएगा, अपोजिट। एग्जैक्टली। इट इज एट पॉइंट सी होगा। ए पे कनेक्ट किया तो एक साइड, सी पे कनेक्ट किया तो दूसरा साइड। बच्चा समझा? यस। यस तो अभी सोच के बताना बच्चा, एक पे ए साइड, एक साइड है, सी पे दूसरा साइड है, सो डोंट यू थिंक ए और सी के बीच में एक पॉइंट होगा जिधर डिफ्लेक्शन जीरो होगा? जीरो होगा। यस बी पे जीरो आएगा। मतलब किधर भी हो सकता है ए और सी के बीच में, जिधर एक तो आपको जॉकी को क्या करना है? ए और बी सी के बीच में स्लाइड करना है। क्या करना है? स्लाइड। तो अज्यूम करो मैंने स्लाइड करके इधर आया, तो इधर मेरे को गैलोनोमीटर जीरो दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? जीरो। जीरो। हाँ, तो इसका मतलब इधर गैलोनोमीटर आ गया, गैलोनोमीटर इज कनेक्टेड टू जॉकी, तो अल्टीमेटली गैलोनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो है, तो ऑब्वियसली ये भी बैलेंस कंडीशन हो सकता है। क्यों बैलेंस कंडीशन? क्योंकि ये पॉइंट मैंने डी ले लिया, ये पॉइंट, तो ए टू डी जो है वायर का रेसिस्टेंस मैंने मान लिया आर ए डी, एंड डी टू सी जो रेसिस्टेंस है वायर का मैंने मान लिया आर डी सी। बच्चा समझा? यस अभी बताओ, डोंट यू थिंक एक्स विल बिहेव लाइक R1, R will behave like R2, RAD will behave like R3, RDC will behave like R4, and don't you think in middle गैलोनोमीटर है जो जीरो दिखा रहा है, मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, यस सर, समझा। यस है ना? यस सर। यस सर। फाइन। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा, ए और डी के बीच में जो लेंथ है उसको स्केल से मेजर करेंगे। सिंस इट इज बिलो एक्स, ये लेंथ को LX लेंगे, तो ऑब्वियसली ये साइड में जो लेंथ है क्या लेंगे बच्चा? LR लेंगे। LR। इतना समझ में आया? यस।
फाइन, तो इतना ही मेरे को बताना था, ये कंप्लीट कर लो, देन विल स्टॉप द लेक्चर। आगे हम लोग को कुछ करना नहीं है, खाली इक्वेशन लिखते जाना है। बच्चे ये जो बना रहे हो नीचे वो डॉटेड ही बनाना है, क्योंकि दोनों केस एक साथ नहीं आ सकता है। सो दिस यू हैव टू शो डॉटेड द लोअर पार्ट, ये कंटिन्यूअस लाइन बनाओ ऊपर वाला, इट्स ओके। नीचे वाला डॉटेड बनाना है।